energy position graph ये connected with the previous video है students. So in the previous video we have calculated the kinetic energy of a particle executing simple harmonic motion. तो उसमें हमने kinetic energy minimum half m omega square r square minus r square, that is at the extreme position, and kinetic energy minimum is equal to 0. Total mechanical energy is U plus K, that is half m omega square r square y square, already explained, and K kinetic energy half m omega square y square. सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा हाफ m omega square r square. तो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ y, रादर इट इज ए फंक्शन ऑफ r. अब मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. एनर्जी पोजीशन graph. To understand energy position graph, let me sketch first, it will save time. So students, I've sketched energy position graph. You know, this is a kinetic, a potential energy curve. This is this pink color you see, reddish or pink, whatever is visible to you. This is a potential energy curve, and this light brown is whatever you observe, you know, this is kinetic energy. अब ये थोड़ा कैमरे में लाइट्स का कलर ट्रायंगल सिखाएंगे, आपको फ़र्क पड़ जाता है. ये y इक्वल टू माइनस आर मीन्स एक्सट्रीम मीन पोजिशन से एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट प्लस आर, एंड ये जो सेंटर में है दैट इज द टोटल एनर्जी. नाउ व्हेन वी आर हियर एट y0, so when y is equal to 0, what do you see? The pink potential energy touches lowest value and kinetic energy touches the highest value. Means at y equal to 0, potential energy is 0, whereas kinetic energy is maximum. Okay, y equal to 0, first position, at y equal to 0, potential energy is 0, kinetic energy is maximum, so that is equal to E, that is the mechanical energy, because sum of kinetic energy and potential energy is mechanical energy. So mechanical energy will be purely into this value, right? Correct? Note it down please, just note it down. And students, when you talk about at a position y is equal to plus minus r, means either here or here. Y is equal to plus minus r. जब आप यहाँ पर जा रहे हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा बॉस? काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी that will be equal to E. So at extreme position potential energy is maximum, that is equal to E. The total of the mechanical energy will be in the form of potential energy at extreme position, and mechanical energy will be in the form of kinetic energy at the mean position. तो इसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन प्योर, और मैकेनिकल एनर्जी प्योर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी एट द मीन पोजीशन. और इस जगह के ऊपर अगर आप यहां देखें, ये जो पॉइंट्स हैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल, but sum will be again same, that is E. So dear students, what do you find? At y is equal to half of amplitude,
तो पोटेंशियल एनर्जी E/4 हो जाएगा। अगर हम y = A/2 करें तो पोटेंशियल एनर्जी E/4 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 3E/4, करेक्ट। सो सिंपल इट इज। अरे यार आप A या R लिख लो, R/2 का वैल्यू पुट कर दो ना, तो ये आपके पास E/4 आ जाएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा आपके पास, 3E/4। सो ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया, करेक्ट। अब मैं आपको एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी is nothing but, let us talk about U average equal to, that is U average, that is the potential energy over a cycle. Cycle is of one time period, that is 1/t, that is 1/t, that is integration of the U dt 0 to t, U dt 0 to t। अब U का वैल्यू अगर आप इसमें डालेंगे ½ m² A² sin² ωt, तो ये पूरा वैल्यू बन के आ जाएगा 1/4 m ω² r²। You need not to derive this value because it is from calculus। नॉन मैड वाले कर सकते हैं U का वैल्यू डाल के, राइट। U का वैल्यू कितना डालेंगे नॉन मैड वालों, ½ m ω² r² sin² ωt, ये डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वैल्यू बन के आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी एवरेज, तो दैट इज 1/t, काइनेटिक एनर्जी एवरेज दैट इज 1/t, दैट इज 0 to t k dt, 0 to t k dt। तो इसका k का अगर आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये आपके पास बन के आ जाएगा 1/4 m ω² r²। मीन्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ कंप्लीट बाय साइकिल इज ऑलवेज सेम। तो अगर आपको MCQ क्वेश्चन आ जाए, when a particle is executing simple harmonic motion, तो what is the ratio of average kinetic energy and kinetic energy, average value of potential energy, तो आप without any hesitation लिख डालेंगे 1:1। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। नॉन मैड वाले आई विल एडवाइज यू टू ड्राइव दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ के एंड इंटीग्रेट इट, इट्स अ सम फॉर यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर MCQs के लिए क्या करना है। मेरा ऐप आ गया है टॉप रैंकर, TOPRANKR, आप इसको लॉगिन कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसमें 2-3 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, अटेम्प्ट कीजिए, तो कहीं भी घर में बैठ के आप अपना टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। एंड वी आर लॉन्चिंग क्रैश कोर्स आल्सो 90 डेज़ का, तो वो आप क्रैश कोर्स भी उसमें ले सकते हैं जो +2 वाले स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगता है फिजिक्स पढ़ना विपिन सर से? मैं एक ट्रेडिशनल टीचिंग दे रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग अदर देन अनट्रेडिशनल मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, सो दैट आपको एक क्लासरूम का फील आए, एक कॉलेज का एक फील आए, एक ऑफलाइन जैसा फील आए। तो ये ऑनलाइन लेक्चर तो है बट बिल्कुल ऑफलाइन जैसा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स ऑल फॉर appreciating my teaching and
If you like it, you keep on telling other students also. Share this channel and you can subscribe अगर आपको अच्छा लगता है तो. मैं ये नहीं कहता कि आप इसको सब्सक्राइब ही करो, मतलब मेरी कोशिश होती है कि आपको एक सिंपलेस्ट वे से मैं टीच करूं. एंड ज़्यादा आलतू फालतू मैं नहीं ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट करता. आई डोंट से मच अबाउट the surroundings. I am just focused on the system. So God bless you. Work very hard. All the best.